Today we'll take the numericals based on Young numbering, right? Young diameter. Last lecture we have already seen the concept of Young number, okay, Young numbering system. Right? Already we have studied this part second year, and probably most of the times you come across with the Young number system. So you basically know there are two types of Young numbering system. One is direct numbering and other is indirect numbering system. Now, suppose if you want to convert the particular number, Young number, into a text, right, into a direct numbering system text, then what we have to use? We have to use the constants. We have to use the constants. Suppose if you want to convert the English count any to the text, right? English count any is different, text is different. We know that. English count any comes under the category of indirect numbering system. If you see text, text comes under the category of direct numbering system. Logic is different because indirect numbering system tells us length per unit weight, whereas direct numbering system tells us weight per unit length, right? But if you want to convert this English count into text, then how we can able to convert? So for that purpose, in order to convert the English count into text, or rather we can say to convert the indirect numbering system to direct numbering system, so we must know the definitions of numbering system first of all, and based on the definition we'll try to find out the constant. We'll try to find out the constant so that we can able to convert a one system into the other system. Now here we'll take the example of cotton and text. Cotton and text. I will show you how to find out the conversion. I will take one numerical. I will show you how to find out the conversion constant. Then later on you have to complete this table. So I have taken two tables here as an example. One is for the conversion of indirect numbering system to the text, and I'm going to take another table where I'm going to convert the direct numbering system to the text. Here for understanding purpose, for the numbering system, I have given the name traditional system. So in short, we are going to convert the traditional system into the text system. Right. So I will take one example. I will find out the conversion constant for converting cotton count into the text. For converting cotton count into the text. You might be knowing the constant, I think, because number of times you come across with this. You might be knowing the constant. Anybody remember the conversion constant between the cotton and text? How much? 90.5. 590. Am I right? 590? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. So 590.5 I think it is. Right? 590.5 it is. So that conversion constant we use for converting cotton into the text. But how that 590.5 comes, that we have to find out here. Right? How that 590.5 comes, that we have to find out. I will show the procedure how to find out. Then you have to calculate for, you have to find out the conversion constant for glass, linen, metric, spun silk, woolen, and worsted. Okay.
So I will use these formulas, these two formulas actually. Very first is the linear density in text is equal to count into 1000 into mass unit converted to grams to the length unit converted to meters. This conversion is for direct numbering system, and this is for indirect numbering system. As this table belongs from indirect numbering system, these traditional systems are indirect numbering system. We'll use this formula. Because this formula gives the conversion of an indirect system to the text. This formula gives an idea about indirect system, conversion of indirect system to the text. So linear density in text is equal to 1 upon count into 1000 mass unit is converted to gram, the length unit is converted to meter. यहाँ पे ये क्यों लिया है? मास यूनिट इज कन्वर्टेड टू ग्राम, लेंथ यूनिट इज कन्वर्टेड टू मीटर. सिंपल लॉजिक यूज किया है. फॉर्मूला में क्या सिंपल लॉजिक यूज किया है उन्होंने? दिस इज जस्ट अ weight per unit length. This is your text. This is your text actually. If you see this formula, this is the text. Weight per unit length. So in text system, weight is in gram, right? And we are taking this weight for 1000 meters, and here the length is in meter. So same thing you are finding here, 1000 into weight converted to the gram unit and divided by length unit converted to the meters. So in short, we are converting into the text, right? English count we are converting into the text. Right? English count we are converting into the text. So this is your English count actually. So in English count also you are having weight unit and length unit. So English count weight unit is pound and length unit is yard. Length unit is yard, right? So what we have to do when we use this formula? What we have to do? We have to convert the weight unit and length unit simply. We have to convert weight unit into the grams and we have to convert length unit into the meters. यहाँ पे हम लेते हैं, देखो if you want linear density in text, मैं यहाँ पे यही पे सॉल्व करता हूँ. So what is the formula? 1 upon, we'll take here n, right? N means that particular count, English count, into 1000 Now here what we have to take? मास यूनिट. हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इंग्लिश काउंट को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं कांस्टेंट निकालने के लिए. इंग्लिश काउंट को हम टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो इंग्लिश काउंट में मास यूनिट क्या है? कितना है? मास कितना लेते हैं हम इंग्लिश काउंट में? व्हाट इज द मास यूनिट? 1 pound. 1 पाउंड रहता है वो. 1 पाउंड रहता है. और लेंथ यूनिट क्या रहता है? लेंथ यूनिट क्या रहता है? हैंक ऑफ 840 यार्ड. यार्ड्स रहता है ना वो? Yes sir. Yes sir. हाँ, हैंक ऑफ 840 यार्ड. कितने यार्ड रहेंगे पता नहीं, कितने हैंक रहेंगे पता नहीं, इसलिए 840 लेना पड़ेगा वहाँ पे, है ना? या तो लेंथ यूनिट यार्ड रहता है सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो. ठीक है. तो अब यहाँ पे हम करेंगे मास यूनिट को ग्राम में कन्वर्ट. अब यहाँ पे मास यूनिट पाउंड में है, उसको कन्वर्ट करो ग्राम में.
कितना आता है? 453.6. 453.6, ये कन्वर्जन है, सिंपल कन्वर्जन है। 1 पाउंड इज इक्वल टू 453.6 ग्राम। Yeah. 1 पाउंड इज इक्वल टू 453.6 ग्राम। तो सेम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि अभी हमने कन्वर्ट कर लिया ग्राम में मास यूनिट को, क्योंकि कॉटन का मास यूनिट तो पाउंड था, उसको हमने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। सो हियर इट इज 453.6 डिवाइडेड बाय, नाउ लेंथ यूनिट इज कन्वर्टेड टू द मीटर। अब यहाँ पे लेंथ यूनिट क्या है? 840 यार्ड। लेंथ यूनिट क्या है? 840 यार्ड। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? यार्ड को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 0.9144 मीटर मल्टीप्लाई बाय 0.9144 मीटर। 1 यार्ड इज इक्वल टू 0.9144 मीटर। सिंपल। 1 यार्ड इज इक्वल टू 0.9144 मीटर। ये कन्वर्जन मालूम होना बहुत जरूरी है, आपको कन्वर्जन मालूम होना ही चाहिए। So 1 yard is equal to 0.9144. So 840 yard means 840 into 0.9144 मीटर। तो हमने ये लेंथ यूनिट को कन्वर्ट कर दिया मीटर्स में। सो हियर विल राइट 840 into 0.9144. So this is in meters. This is in meters. The numerator is in gram that we want. The denominator is in meters as per our requirement. Now we can able to calculate the constant. X is equal to ये 1 by इंग्लिश काउंट, इनडायरेक्ट है इसलिए 1 by n आता है, डायरेक्ट रहेगा तो डायरेक्टली न्यूमरेटर में n आता है। ये कितना आता है बताओ, कैलकुलेट करके बताओ। 590.5 कितना आता है वो न्यूमरेटर में आएगा 590.5। 590.5 ये जब कैलकुलेशन करोगे तो ये पूरा न्यूमरेटर में आएगा 590.5 आंसर उसका। सो 590.5 डिवाइडेड बाय यानी वी कैन से, अब यहाँ पे लिख सकते हैं यानी, आप यानी लिखो खाली, यहाँ पे पर्टिकुलर एग्जांपल ले रहा हूँ इसलिए यानी लिखा मैंने। सो टैक्स इज इक्वल टू 590.5 डिवाइडेड बाय यानी। तो इस तरीके से आता है, आपको सेकंड में बताया होगा ये कन्वर्जन रहता है, वो कन्वर्जन रहता है, लेकिन ये कन्वर्जन आया कहाँ से? इस तरीके से आया है। डेफिनेशन को मद्देनजर देखते हुए उसके हिसाब से हमने क्या किया, उसमें कन्वर्जेंस किए, क्योंकि टैक्स में कन्वर्ट करना है तो टैक्स सिस्टम में लाना पड़ेगा इंग्लिश को, इंग्लिश काउंट को। तो टैक्स में तो वेट यूनिट ग्राम में रहता है और लेंथ यूनिट मीटर में रहता है, तो हमने वही किया। जो इंग्लिश काउंट था उसका वेट यूनिट हमने पाउंड से ग्राम में लेके गए और लेंथ यूनिट यार्ड से मीटर में लेके गए, बस। व्हेन यूज दिस फॉर्मूला यू विल गेट द आंसर। ये फॉर्मूला यूज करो, कन्वर्जेंस करो, यू विल गेट द आंसर। सो अब यहाँ पे आपका आंसर आ गया 590.5। आपका आंसर क्या आ गया? 590.5। सो आई विल राइट हियर 590.5. So constant is divided to give a equivalent value in text. If you want a text, you have to use this constant. This constant is divided to the giving the equivalent text. Means what? इसका meaning क्या रहता है? Text is equal to this constant is divided by that traditional system. यानी text is equal to constant by यानी। अब यहाँ पे constant आपका निकल के आ गया 590.5. So your final formula will become like text is equal to 590.5 divided by n. वो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट इस तरीके से निकालते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द कांस्टेंट्स फॉर दिस नंबरिंग सिस्टम। आई विल वेट फॉर 10 to 15 minutes. You have to calculate the constants for these systems. नाउ अगर इसके कांस्टेंट्स आपको निकालना है तो आपको क्या मालूम होना चाहिए? यहाँ पे इन सिस्टम्स का, ट्रेडिशनल सिस्टम्स का आपको क्या मालूम होना चाहिए?
सबका वेट यूनिट मालूम होना चाहिए और लेंथ यूनिट मालूम होना चाहिए, सबका वेट यूनिट मालूम होना चाहिए, लेंथ यूनिट, तो ये आप कर सकते हो, कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हो। सबको यही फॉर्मूला यूज करना है। अब इसका लेंथ यूनिट और वेट यूनिट क्या है? फॉर एग्जांपल ग्लास, ग्लास का वेट यूनिट क्या है? चलो ठीक है, आपको याद नहीं आएगा उतना, टेक्स और डेंजर का ही आता नहीं। तो खराब हो गया, जस्ट होल्ड। यू यूज दिस चार्ट, नंबरिंग सिस्टम चार्ट, ये सबको मगड़ होना चाहिए, ये सारे नंबरिंग सिस्टम है। ये डायरेक्ट है, सॉरी ये इनडायरेक्ट है और ये डायरेक्ट है। अब यहाँ पे बताओ ग्लास का वेट यूनिट क्या है? आई सीइंग दिस टेबल, व्हाट इज द वेट यूनिट फॉर ग्लास? पाउंड सर। पाउंड। एंड लेंथ यूनिट? 100 यार्ड। 100 यार्ड। तो आप वो फॉर्मूला यूज करो और फिर आप सब कॉन्स्टेंट्स निकालो। आई विल वेट फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट के बाद हम देखेंगे। वुलन का क्या निकालेंगे? वुलन का वुलन में बहुत सारे हैं, कौन सा निकालोगे? अमेरिकन रन निकालो वुलन का, अमेरिकन रन, और अमेरिकन कट भी निकालो। वुलन का दोनों निकालो, अमेरिकन रन है अमेरिकन कट। यहाँ पे एग्जांपल में आपको वुलन दिखाया है, वुलन। तो यहाँ पे रन और कट दोनों निकालने का आंसर याद है क्या? वहाँ पे यहाँ पे एग्जांपल में आपको वुलन दिखा है, वुलन रन और वुलन कट दोनों चाहिए।
सॉल्व हो गया सबका? कांस्टेंट निकाला क्या? हेलो, यस सर। ग्लास का कितना आया? वुलन का कैसे? रोस्ट का ग्लास 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 4960.6। 4960.6। ओके, के बाद लिनियन का 1653.5। अब 53.5। 16.5। अब आप मत बताओ अभी, ऋषिकेश, अब दूसरा कोई तो बताओ, मेट्रिक का कितना है बताओ। 1000। हाँ 1000। अब सौरभ कुंडले भी नहीं बताएगा। नाउ आंसर should come from others. Rishikesh and Saurabh will not tell the answer. They will not tell the answer. Spun silk. Spun silk. Pratik Dulani. Okay. Anybody else? Pratik Dulani have posted the answer. Others? इतने सारे बच्चे हैं, 2-3 बच्चे आंसर दे पाते हैं क्या? वैसे तो ये स्पन सिल्क का तो आंसर देना बहुत सिंपल है। इंग्लिश काउंट और स्पन सिल्क सेम ही है, इफ यू नो द डेफिनेशन। इंग्लिश काउंट में भी लेंथ यूनिट यार्ड ही रहता है 840 का, स्पन सिल्क में भी उतना ही रहता है। इंग्लिश काउंट में भी वेट यूनिट पाउंड ही रहता है, यहाँ पे भी पाउंड ही रहता है, तो वो सेम ही आएगा इंग्लिश काउंट जैसा, 590.5 आएगा। आगे बताओ, स्पन सिल्क रहेगा वही सेम रहेगा 590.5। आगे वुलन, वुलन का रन का बताओ, अमेरिकन रन, अमेरिकन रन दूसरे बच्चे बताना है। अदर्स बताओ। डिप्लोमा साइड से डिप्लोमा साइड से बताओ, जिन्होंने डिप्लोमा कंप्लीट किया है उनको तो पहले आना चाहिए। आंसर्स आर गिविंग बाय दी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। बहुत से बच्चे हैं। सुमित सिंह, ये किसका है? 311 किसका है? सुमित सिंह, विच फाइबर, सॉरी विच काउंट? अमेरिकन रन। Okay. Anybody else?
Anybody else from diploma side? American run. इसका मतलब है डिप्लोमा के बच्चों को समझा नहीं है कैसे कन्वर्जन करना है, कांस्टेंट कैसे निकालना है। ये मधुरा कौन सा है, कौन सा सिस्टम है? 1653.5 कौन से सिस्टम के लिए निकाला है? खाली आंसर मत डालो, वहाँ सिस्टम भी डालो, सिस्टम का नाम डालो, ट्रेडिशनल सिस्टम का नाम डालो, मुझे समझ नहीं आता है। 1653.5 फॉर विच? इज इट अमेरिकन रन? पुट योर मैसेज मधुरा। ओके, तो अमेरिकन रन का 311 आता है, अमेरिकन रन 311 आता है। सुमित सिंह ने बराबर बताया। अमेरिकन कट का, और इसमें और एक ऐड कर देते हैं, वुलन अमेरिकन कट। अमेरिकन कट का कितना आता है? देखो मैं यहाँ पे फिर से एक बार दोहराता हूँ न्यूमेरिकल को, देखो कैसे समझ में आता है क्या। ये इनडायरेक्ट नंबरिंग सिस्टम है, डायरेक्ट में कन्वर्जन कांस्टेंट निकालना है, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। ये फॉर्मूला डिराइव किया है बाय डेफिनेशन, ठीक है। सो टेक्स इज इक्वल टू 1 बाय इनडायरेक्ट नंबरिंग सिस्टम, दैट इज ट्रेडिशनल काउंट। सो यहाँ पे आएगा अमेरिकन कट, यहाँ पे आएगा अमेरिकन कट, फॉर्मूला वैसे ही है, इंटू 1000 इंटू मास यूनिट कन्वर्टेड टू ग्राम, लेंथ यूनिट कन्वर्टेड टू मीटर, इतना ही ध्यान में रखना है। अब अमेरिकन कट का मास यूनिट किस में है? अमेरिकन कट का मास यूनिट किस में है? अमेरिकन कट का अगर हम डेफिनेशन देखेंगे, सो द मास यूनिट इज इन पाउंड। अमेरिकन कट का मास यूनिट पाउंड में है, और लेंथ यूनिट अमेरिकन कट का यार्ड्स में है, और जनरली हम अमेरिकन कट में 300 यार्ड लेते हैं, 300 यार्ड लेते हैं। डेफिनेशन मालूम होना जरूरी है। अमेरिकन कट मतलब क्या है? नंबर ऑफ हैंड्स ऑफ 300 यार्ड्स वेइंग इन 1 पाउंड इज कॉल्ड एज अमेरिकन कट। Number of hands of 300 yards weighing in 1 pound is American cut. तो यहाँ पे वेट यूनिट पाउंड है, लेंथ यूनिट यार्ड है, 300 यार्ड है। अब यहाँ पे एज वेट यूनिट पाउंड है, बट यहाँ पे हमें चाहिए ग्राम में, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्राम में। सो 453.6 ग्राम, 1 पाउंड इज इक्वल टू 453.6 ग्राम। तो हम यहाँ पे ले लेंगे 453.6 एज इट इज, इसको हम एन बोलते हैं, अमेरिकन कट 1/n। 453.6 एक ग्राम में कन्वर्ट हो गया। अब लेंथ की बारी आ गई, अब यहाँ पे लेंथ है 300 यार्ड, अपने को चाहिए मीटर में। सो 300 यार्ड इंटू 0.9144, ये मीटर में कन्वर्जन है यार्ड का। 1 यार्ड इज इक्वल टू 0.9144 मीटर। सो हियर आई विल राइट 300, लेंथ यूनिट है ये, 300 इंटू 0.9144। जब ये कैलकुलेशन करेंगे हम 1000 इंटू, ये 1000 इंटू 453.6 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 0.9144, इसका आंसर मिल जाएगा आपको, कांस्टेंट मिल जाएगा आपको। कितना आता है कांस्टेंट? अमेरिकन कट का कांस्टेंट कितना आता है आप बताओ।
अमेरिकन कट, ओके 1654 आता है क्या? एनीबडी एल्स? Yes, sir. ओके 1654. सो अमेरिकन कट इज 1654. इस तरीके से निकालना है। क्या है इसमें डिफिकल्ट बताओ? कुछ भी तो डिफिकल्ट है नहीं, इतना टाइम लगाया आपने, 2-3 बच्चे छोड़े तो किसी को आ नहीं रहा है। वैसे देखा जाए तो इसमें डिफिकल्ट कुछ है भी नहीं। अगर इतना सिंपल मैथमेटिक्स नहीं आएगा तो कैसे सर्वाइव करोगे आप इंडस्ट्री में? वर्स्टेड का कितना आता है? वर्स्टेड भी आपको मैं सॉल्व करके देता हूँ, किसी को अगर नहीं आता है तो। वर्स्टेड इज ऑल्सो इनडायरेक्ट नंबरिंग सिस्टम, उसको डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है तो एज इट इज 1 बाय काउंट ही यूज करेंगे हम, क्योंकि इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में जा रहे हैं टेक्स्ट में। सो 1 बाय n अगेन इंटू 1000 एज इट इज इंटू मास यूनिट। अब वर्स्टेड का मास यूनिट कितना है? वर्स्टेड का मास यूनिट क्या है? वर्स्टेड का मास यूनिट है अगेन पाउंड। वर्स्टेड का मास यूनिट है अगेन पाउंड। और लेंथ यूनिट क्या है? लेंथ यूनिट है उसका 560 यार्ड्स। डेफिनेशन क्या है वर्स्टेड का? नंबर ऑफ हैंग्स ऑफ 560 यार्ड्स weighing in 1 pound is the worsted count. So weight unit is pound, length unit is 560 yard. Same again conversion, pound को ग्राम में 453.6 ग्राम, और लेंथ सेम वही 560 इंटू 0.9144। तो यहाँ पे लिखो वो 453.6 and length unit is 560 into 0.9144. When you do this calculation, 1000 into 453.6 divided by 560 into 0.9144, you will get a constant. What is that constant? Tell me. Eight 5.8. 8 885.8. 5.8. 885.8. 885.8 is the constant. तो इस तरह के कांस्टेंट निकालना है, इस तरीके से कांस्टेंट निकालना है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करो घर में, आपको निकल जाएगा कांस्टेंट। एग्जाम में कौन सा भी सिस्टम आ सकता है, आपको कांस्टेंट निकालना आना चाहिए। एग्जाम में सीधा आएगा, क्या आएगा क्वेश्चन? फाइंड आउट द कन्वर्जन कांस्टेंट व्हेन वी वांट टू कन्वर्ट स्पंज सिल्क इनटू द टेक्स्ट। फॉर कन्वर्जन ऑफ स्पंज सिल्क टू द टेक्स्ट फाइंड आउट द कन्वर्जन कांस्टेंट, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको निकालना आना चाहिए। तो ये मेथड है निकालने का, ये फॉर्मूला है। उसके लिए आपको डेफिनेशन मालूम होना जरूरी है, उसके लिए आपको डेफिनेशन मालूम होना जरूरी है। और वो डेफिनेशन वो चार्ट में है, मैंने दिखाया है आपको। मैंने आपको कल भी बोला था, लास्ट लेक्चर में भी बोला था, इसका फोटो मार के ले लो और इसको रोज पढ़ो। ये नंबरिंग सिस्टम है, यहाँ पे सब दिया है, वेट यूनिट दिया है, लेंथ यूनिट दिया है। क्या डिफिकल्ट क्या है? देखो सिंपल रहता है। नंबर ऑफ हैंग्स ऑफ 100 yards weighing 1 pound is the asbestos American. Number of hangs of 50 yards weighing 1 pound is the asbestos British. Number of hangs of 1 yard weighing in 1 ounce called as cotton bumpian. क्या डिफिकल्ट क्या है? ये सेम है, सब लॉजिक सेम है। इसका अगर इसका डेफिनेशन बनाना है तो डायरेक्ट का वेट इन ग्राम्स ऑफ 1000 मीटर्स ऑफ मटेरियल, डेनियर का वेट इन ग्राम्स ऑफ 9000 मीटर्स ऑफ मटेरियल, लिनेन का वेट इन पाउंड्स ऑफ 14400 यार्ड्स ऑफ मटेरियल, हेम्प का वेट इन पाउंड्स ऑफ 14400 यार्ड्स ऑफ मटेरियल। कंसेप्चुअली इफ यू डू स्टडी नो, आपको कुछ डिफिकल्ट नहीं जाएगा। ये उसका वेट यूनिट रहता है, ये लेंथ यूनिट रहता है, ये वेट यूनिट रहता है, ये लेंथ यूनिट रहता है।
तो इसका फोटो मार के ले लो, स्क्रीनशॉट, तो रोज पढ़ो, उसको ध्यान में रखो। तो यहाँ पे ये कॉन्स्टेंट्स आते हैं, बाकी के भी कॉन्स्टेंट्स निकालो आप, बहुत सारे यहाँ पे, सब नहीं लिया मैंने। तो ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो सिंपल बात है, अगर कोई एग्जांपल आता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करो करके, कोई एग्जांपल आएगा, कोई भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल हम लेके चलते, सपोज कि 40 इंग्लिश काउंट को टेक्स्ट में कन्वर्ट करो, 40 इंग्लिश काउंट को टेक्स्ट में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे? आपको आप कांस्टेंट पता है, वो फॉर्मूला पता है कांस्टेंट का, कैसे बनाते हैं? टेक्स्ट सिस्टम में अपने को कन्वर्ट करना था, कांस्टेंट बाय ट्रेडिशनल काउंट, कांस्टेंट बाय ट्रेडिशनल काउंट, ये सब ट्रेडिशनल काउंट है ना। हाँ, ये फॉर्मूला बन गया आपका, टेक्स्ट इज इक्वल टू कांस्टेंट बाय ट्रेडिशनल काउंट, ये जनरल फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पे जो कि कॉटन इंग्लिश काउंट है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट इज इक्वल टू, ये जो कांस्टेंट है इंग्लिश काउंट का ले लेंगे। इंग्लिश काउंट का कांस्टेंट क्या है? 590.5, और ट्रेडिशनल काउंट कौन सा है अपना? यहाँ पे इंग्लिश काउंट है, तो ये नहीं लेंगे, यहाँ पे इंग्लिश काउंट ये नहीं लेंगे। तो ये फॉर्मूला बन गया कॉटन के लिए। जो ग्लास के लिए क्या बनेगा, यहाँ पे 590 चला जाएगा, 4960 आएगा, और यहाँ पे इंग्लिश काउंट चला जाएगा, ग्लास आएगा, बस। तो एग्जाम में अगर कौन सा भी सिस्टम हो, टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए आया, तो एक कांस्टेंट मालूम होना जरूरी है। अगर कांस्टेंट मालूम नहीं है तो बनाओ, कांस्टेंट बनाओ बाय फॉर्मूलाज, बाय यूजिंग दैट बेसिक फॉर्मूला, 1 count into 1000 into mass unit converted into meter grams divided by length unit converted into the meters, उससे। अब यहाँ पे 40 से टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, सिंपल है। टेक्स्ट इज इक्वल टू 40 बाय इंग्लिश काउंट, सॉरी कांस्टेंट बाय इंग्लिश काउंट। तो यहाँ पे कांस्टेंट है अपना 590.5 डिवाइड बाय इंग्लिश काउंट 40, 590.5 डिवाइड बाय 40, यू विल गेट द टेक्स्ट आंसर, जो भी आएगा एक्स मान के चलते, एक्स टेक्स्ट। तो इस तरीके से सॉल्व करना है इस टेबल का यूज करके। नाउ जैसे आपने यहाँ पे निकाला इनडायरेक्ट काउंट का टेक्स्ट में, अब यहाँ पे हम निकालेंगे डायरेक्ट का टेक्स्ट में, डायरेक्ट का टेक्स्ट में निकालेंगे। अब डायरेक्ट का टेक्स्ट में निकालेंगे तो उसको फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे हम? ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना। x इज इक्वल टू n इंटू 1000 इंटू मास यूनिट इन ग्राम डिवाइडेड बाय लेंथ यूनिट इन मीटर, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। सेम फॉर्मूला जो ऊपर था मैंने वही लिखा है। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल सॉल्व करके देता हूँ, चलो हाँ, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल सॉल्व करके देता हूँ, बाकी के आप निकाल के लाओ घर से। मैं डेनियर का सॉल्व करके देता हूँ। टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, n इंटू 1000 इंटू मास यूनिट इन ग्राम डिवाइडेड बाय लेंथ यूनिट इन मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर आता है, वो इनडायरेक्ट में डिवाइडिंग फैक्टर आ रहा था, अब यहाँ पे मल्टीप्लाइंग आएगा। n इंटू 1000, ये n क्या रहेगा आपका? डेनियर रहेगा। तो डेनियर में मास यूनिट क्या है? ग्राम में है क्या डेनियर में? डेनियर का डेफिनेशन अगर आपको पता है तो मुझे बताओ, मास यूनिट डेनियर का ग्राम में है या पाउंड में है? ग्राम में है सर। ग्राम में। तो कन्वर्ट करने की जरूरत है क्या? नो सर। नो। तो यहाँ पे सीधा सीधा मैं ग्राम लिख लेता हूँ, 1 ग्राम। हाँ, ग्राम मतलब 1 ग्राम रहता है, यूनिट रहता है वो, ठीक है। डिवाइड बाय लेंथ यूनिट कितना है डेनियर में? लेंथ यूनिट किसमें है? यार्ड में है, मीटर में है, किसमें? हाँ,
मीटर में है लेंथ यूनिट, बट वो कौन सा है 9000 मीटर्स में रहता है। वो लेंथ यूनिट 9000 मीटर्स में लेते हैं हम, लिनियर में लेंथ यूनिट 9000 मीटर में लेते हैं। तो ऑलरेडी मीटर में है तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाला ऑलरेडी ग्राम में है तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब ये जब कैलकुलेशन करोगे, क्योंकि हमने यहाँ पे मास यूनिट कन्वर्ट कर दिया है ग्राम में और लेंथ यूनिट कन्वर्ट कर दिया है मीटर में, यहाँ पे कन्वर्ट करने की जरूरत गिरी नहीं, बिकॉज ऑलरेडी लिनियर में मास यूनिट ग्राम में रहता है, लेंथ यूनिट मीटर में रहता है। अब ये जब कैलकुलेशन करोगे तो आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा, इज इक्वल टू n इंटू एक्स इज इक्वल टू n इंटू कितना आएगा, ये कैलकुलेट करके बताओ मुझे। 0.111 राइट, तो 0.1111, so this is the conversion constant 0.1111। ये हो गया मल्टीप्लाइंग फैक्टर। पिछले वाले एग्जांपल में सब डिवाइडेशन आए थे, डिवाइडिंग फैक्टर आए थे, ये मल्टीप्लाइंग है। सो ये जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे, x इज इक्वल टू ट्रेडिशनल काउंट इनटू कांस्टेंट, ट्रेडिशनल काउंट इनटू कांस्टेंट, ये बनेगा आपका जनरल फॉर्मूला। किसी भी सिस्टम का टैक्स में अगर निकालना है तो डायरेक्ट का, किसी भी डायरेक्ट सिस्टम का टैक्स में आपको निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और किसी भी इनडायरेक्ट सिस्टम का टैक्स में निकालना है तो कांस्टेंट डिवाइडेड बाय ट्रेडिशनल काउंट, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय ट्रेडिशनल काउंट। बस अब आप क्या करो, घर में इनके निकाल दो, ठीक है। और इसमें और एक ऐड करो, वुलन अबरडीन भी निकालो, वुलन इसमें और एक ऐड है, ऑलरेडी है यहाँ पे, सॉरी ऑलरेडी है। वुलन कौन सा निकालो, एबरडीन, वुलन एबरडीन निकालो कांस्टेंट, और कल मुझे बता देने का। लगता क्या है, ये चार्ट लगता है, आई होप सबने स्क्रीनशॉट मार के लिया होगा। ओके, सो टुडे विल स्टॉप हियर, remaining numericals will take in next lecture.